वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ की पाठशाला मस्ती की पाठशाला। तो मैं जो एमसीक्यू डाली थी रिलेशन एंड फंक्शन का, उसके बाद कुछ बच्चों ने बोला रिलेशन एंड फंक्शन का क्या कंसेप्ट है और क्या फॉर्मूलाज है बताने के लिए। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लाई हूँ। ओनली उसका रिलेशन का फंक्शन का कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूलाज है, तो उसे देखते रहना। और डेफिनेशन ये सब के लिए एमसीक्यूज़ का और रिलेशन का वीडियो देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, total number of relations from a set consisting of m elements to a set consisting of n elements. A to B relation, if a set is consisting m element and B is having n element, then total number of relation is 2 to the power mn. Okay, then a relation on a set A is a subset of A cross A. If a relation from A to A, it is relation is subset ऑफ ए क्रॉस ए। देन रिलेशन में क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। रिफ्लेक्सिव, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए ऑल ए बिलोंग्स टू आर। रिलेशन का जो वीडियो है उसमें मैं डिटेल्स में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का बताई हूँ, उसे जाकर देख लेना। और ये है फॉर्मूला तुम लोग ने बताए थे, इसीलिए मैं थोड़ा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन सब लाई हूँ। ठीक है, तो सिमेट्रिक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। Transitive, if AB belongs to R, BC order pair belongs to R. If AC belongs to R, then it is transitive. And when a relation is an equivalence relation, if it is reflexive, symmetric and transitive, then a relation is called equivalence relation. Anti-symmetric relation, if AB belongs to R and BA belongs to R, implies A is equal to B. The empty relation, if R is equal to phi. The universal relation, if R is equal to A cross A, then it is universal relation. Next concept is, if A cross B is not equal to B cross A, unless A equal to B. A cross B is equal to phi when one or both A and B are empty sets. Okay. A cross B is not equal to phi if and only if A is not equal to phi and B is not equal to phi. If A and B are finite sets, then number of element in A cross B is equal to number of element in B cross A. B cross A में जितना एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर, A cross B में भी सेम ऑर्डर पेयर आएगा. If A and B are non-empty sets and either A or B is infinite set, then A cross B is also infinite set. If A and B are finite non-empty sets, then number of element in A cross B is equal to number of element in A into number of element in B. Let A and B be any two non-empty sets having n common elements, then A cross B and B cross A have n square elements in common. Then what is the difference between reflexive relation and identity relation? The identity relation on a non-empty set A is always reflexive on A, but a reflexive relation on A is not necessarily to be identity relation on A. As R equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1 is reflexive, but it is not identity. Because only 1, 1, 2, 2, 3, 3 रहेगा, then you can say it is identity. अगर अदर कुछ ऑर्डर पेयर रहेगा, it is reflexive but not identity. यहाँ तक होगा तो only identity. अगर उसके बाद कुछ ऑर्डर पेयर है, it is reflexive but not identity. Okay, so all the identity relation is reflexive, but all the reflexive relation is not identity. Clear?
Then the identity and universal relations on a non-empty set are symmetric relations. A reflexive relation on a set A is not necessarily symmetric. A relation R on a set A is reflexive if R equal to R inverse. Empty relation is the smallest relation on a set. Universal relation is the largest relation on a set. Empty relation and universal relations are also called trivial relations. If R and S are two equivalence relations on set A, then R intersection S is also an equivalence relation. The union of two equivalence relations on set A is not necessarily an equivalence relation on the set. If R is an equivalence relation on set A, then R inverse is also an equivalence relation on A. Let A and B be two non-empty sets, then a subset of f of A cross B is a function from A to B. व्हेन फंक्शन कब होगा, सब डोमेन का तो व्हेन इट इज रिलेशन, एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन इफ डोमेन का सारा एलिमेंट का एक इमेज रहेगा. अगर यहाँ है 1 2 3, उसका एक एक इमेज इसमें रहेगा और वन मैनी रिलेशन नहीं होगा. मीन्स वन यहाँ 1A और 1B नहीं आएगा. 1A 1B होने से, वन मैनी रिलेशन होने से इट इज़ नॉट ए फंक्शन. सो ये है उसका कंसेप्ट क्या है ना. इफ़ AB बिलोंग्स टू F, SC बिलोंग्स टू F, देन B इक्वल टू C. दैट मीन्स इफ़ A का इमेज B एंड A का भी इमेज C, उसमें B अगर इक्वल टू C होगा, देन दैट मीन्स 1 1. वन मैनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. ओके, सो सारा कंसेप्ट में उसका MCQ में समझाई हूँ. आप लोग फॉर्मूला पूछे हैं इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ. तो देख लो ये क्या फॉर्मूला है, इसीलिए मैं उसे ले आई हूँ. Let A and B be two non-empty set, then a function from A to B associates every element of A to unique element of B, then A is called domain of F set, B is called codomain, and the set of images of elements of set A is known as range of F. If F from A to B is a function, then x equal to y implies f of x equal to f of y, xy belongs to A. A function f from A to B is a 1 1 function or injection. When 1 1 होगा, if f of x equal to f of y implies x equal to y, if or x is not equal to y implies f of x is not equal to f of y. Graphically, if the graph of a function does not take a turn, in other words a straight line parallel to x-axis does not cut the curve at more than one point, then it is a 1 1 function. A function f from A to B is an onto function or surjection if range of equal to codomain. Okay, then 1 1 कब होगा, if n of a number of element in A less than equal to n of B. onto कब होगा, n of A greater than equal to n of B. Then if number of functions, number of 1 1 function, number of onto function का ये फॉर्मूला है. total number of function from A to B n to the power m. नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का ये फॉर्मूला है NCM. ये पूरा मैं वो MCQ वीडियो में समझाई हूँ, उसे देखना. और एक बार मैं नहीं बोलती हूँ, ओनली फॉर्मूला इज देयर. नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन का ये फॉर्मूला हुआ m ग्रेटर देन n इक्वल टू n होने से क्या है, m लेस देन n होने से क्या है. नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन इफ m इक्वल टू n फैक्टोरियल, m इज नॉट इक्वल टू n इज 0. इफ a function f from A to B is not an onto function, then f from A to f of A is always an onto function. तो पॉज करके भी तुम ये देख सकते हो, लिख सकते हो और सारा फॉर्मूला. इफ़ A to B is a bijection, then G from B to A is inverse. If f of x equal to y, g of y equal to x, गॉफ होगा IA, फॉग होगा IB. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है MCQ. इफ गॉफ ऑफ IA इक्वल टू IA एंड f इज 1 1, देन g इज ऑन टू. f 1 1 होगा तो g ऑन टू होगा.
fog में f is onto then g is 1 1. Okay, if f from a to b and g from b to c is two function, gof onto होगा then g onto होगा, gof 1 1 होगा, f 1 1 होगा. समझ में आया? गोफ इज ऑन टू होगा, जी 1 1 होगा, एफ ऑन टू होगा. गोफ इज 1 1 होगा, एफ ऑन टू, जी 1 1. ओके, ओनली फार्मूला में लेके आई हूँ ये वीडियो में. फंक्शन तो हम लोग बच्चे लोग पूछे थे ओनली फार्मूला, इसीलिए मैं कुछ फार्मूलाज लेके आई हूँ, तो उसे देख लेना. उसे डिटेल्स में मैं पहले जो एमसीक्यू वीडियो डाली थी उसमें समझाई हूँ. और ये है फंक्शन का डोमेन एंड रेंज. मॉड एक्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है. ब्रैकेट एक्स दैट इज ग्रेटेस्ट मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबका डोमेन एंड रेंज लेके आई हूँ. उसे याद रखना है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. और दिस इज its periodic functions, that means which is even function, which is odd function. When sin nx means n is even, that means sin square x. तो sin square x का पीरियड क्या है, पाई. लाइक दिस सेकेंड सेक एन एक्स कोसेक एन एक्स. अगर n ऑड होगा पीरियड होगा 2 पाई, n इवन होगा पीरियड इज पाई. 10 to the power n x cot n to the power n x, n इज इवन और ऑड जो भी होने से उसका पीरियड होगा पाई. साइन एक्स मॉड कॉस एक्स उसका पीरियड होगा पाई. लाइक दिस एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स का पीरियड होगा 1. अलजेब्रिक फंक्शन पीरियड डजंट एग्जिस्ट. ओके, तो ये था तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शंस का. ये जो डोमेन एंड रेंज, फंक्शन और पीरियड, ये फार्मूला भी जेई के लिए भी एप्लीकेबल है. ठीक है, तो ये जो इवन एंड ऑड फंक्शन का है, अभी तुम्हारा एग्ज़ाम में एमसीक्यू ज़्यादा नहीं आ सकता है, क्योंकि वो भी कोर्स में इवन ऑड फंक्शन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है. में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जेई में आएगा, ये डोमेन रेंज आएगा. बट तुम्हारा अभी है ये कंपोजिट फंक्शन, उसे अच्छे से देखना. कंपोजिट नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ 1 2, नंबर ऑफ फंक्शंस. नंबर ऑफ 1 1 कब होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन इक्वल, तो उसे इस कॉन्सेप्ट को लेके भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है. ओके, देन फंक्शन कैसे हो सकता है, देन रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है, यूनियन का किसी का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं, एम्प्टी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी. ये सारा कंसेप्ट इसी में है. और बाकी इसमें थोड़ा मैं डिटेल्स में नहीं बताई हूँ. आप लोग उसे जो पहले का एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो है वो प्लेलिस्ट में है, उसे टोटल देखने से सारा चैप्टर समझ में आएगा. ओके बच्चों, वीडियो को एंड तक देखते रहो. प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन. द इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक. तो इन्वर्स इज ऑलवेज यूनिक. एक ही इन्वर्स निकाल सकते हो. द इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव एंड एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ. इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव देन एफ इन्वर्स ओ एफ इक्वल टू आई ए आइडेंटिटी function, and FOF inverse equal to IB, where IA and IB are identity functions on the sets A and B respectively. If F from A to B and G from B to C are two bijection, then GOF from A to C is a bijection, and GOF inverse equal to F inverse OG inverse, and FOG inverse whole inverse equal to G inverse OF inverse. Let F from A to B and G from B to A be two functions such that GOF equal to IA, FOG equal to IB, then F and G are bijection and G equal to F inverse. अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. तो आप लोग के लिए तो मेहनत लगता है, लेकिन व्यूज़ बढ़ जाता है, सब्सक्राइब नहीं मिलता है. तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो. तुम लोग की पढ़ाई के लिए हम लोग इतना कष्ट उठाते हैं, तो आप लोगों का भी सपोर्ट तो बनता है बच्चों. तो नेक्स्ट फिर मैं वीडियो लाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय.